حضرات اب آؤ اصلاح کے ٹاپک پر تھوڑی دیر گفتگو میں کرنا چاہوں گا۔ نبی آئے انقلاب لے کر کے آئے، نبی آئے دستور حیات لے کر کے آئے، نبی آئے دستور زمانہ لے کر کے آئے۔ آج ہم غیروں کے کلچر میں رہ کر اپنے ایمان کا جنازہ نکال رہے ہیں، ان کے بنائے ہوئے وصولوں پہ اپنا رہے ہیں، ان کے بنائے ہوئے وصولوں پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ مسلمانوں تم اسلام کے ماننے والے ہو، شریعت کے ماننے والے ہو، غوث و خواجہ کے ماننے والے ہو، امام احمد رضا کے فالوور ہو، اس لیے تمہارے قدم بہکنے نہیں چاہیے۔ اٹھیں تو صراط مستقیم پر اٹھیں، اٹھیں تو سچے راستے پر اٹھیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، اپنے بچوں کو تہذیب سکھاؤ۔ آؤ بات آ گئی ہے ادب کی، تو اس زمانے کی طرف ہم تمہارے نظر کو لے کر چلنا چاہتے ہیں جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ میرے نبی آئے انقلاب لے کر کے آئے، نبی آئے دستور حیات لے کر کے آئے، نبی آئے دستور زمانہ لے کر کے آئے۔ اس زمانے کو یاد کرو جب میرے پیغمبر نے اعلان نبوت کے بعد، میرے پیغمبر نے جب لوگوں کو کلمہ پڑھانا شروع کر دیا تھا تو مکہ مکرمہ میں ایک انسان تھا جسے دہیا قلبی کہا جاتا ہے، ابھی یہ ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں ہوئے ہیں۔ محدثین کرام فرماتے ہیں حضرت دہیا قلبی کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا تھا، اتنا حسین بنایا تھا، اتنا خوب رو بنایا تھا، جب اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے تو عورتیں پردے کے پیچھے سے دہیا قلبی کے چہرے کو دیکھا کرتی تھی، اس حسین نوجوان کو دیکھا کرتی تھی، اس حسین کے چہرے کو دیکھا کرتی تھی۔ ایک دن میرے سرکار کی نظر حضرت دہیا قلبی کے چہرے پہ پڑ گئی۔ دہیا قلبی کے چہرے پہ جیسے پڑی، میرے نبی نے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا، یا اللہ دہیا قلبی کو ایمان کی دولت عطا کر دے، دہیا قلبی کو مسلمان بنا دے، یا اللہ دہیا قلبی کو کلمے کی سعادت نصیب فرما دے۔ میرے نبی دعا مانگے اور قبول نہ ہو، اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ تعجب تو یہ ہے کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ میرے نبی دعا مانگتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے حضرت دہیا قلبی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کس کا کلمہ آپ پڑھواتے ہیں، کس دھرم کا پرچار آپ کرتے ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے دہیا قلبی پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دہیا قلبی نے تو کلمہ پڑھ لیا مگر دست بستہ رو رو کر کے کہا یا رسول اللہ میرے دو گناہ بہت بڑے بڑے ہیں، کیا آپ کا خدا میرے ان دونوں گناہوں کو معاف کر دے گا، میرے جرم و خطا کو معاف کر دے گا؟ دہیا قلبی ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اس لیے انہیں خبر نہیں تھی کہ اسلام کا خدا رحمان بھی ہے، اسلام کا خدا رحیم بھی ہے، اسلام کا خدا کریم بھی ہے، اسلام کا خدا ستار بھی ہے، اسلام کا خدا غفار بھی ہے، اسلام کا خدا سارے جگ کا پالن ہار بھی ہے۔ دہیا قلبی یہ کہتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں دہیا قلبی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کہنا ہی تھا حضرت جبریل اتر پڑے، آگر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا خدا آپ کو سلام کہتا ہے اور دہیا قلبی کو خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ فرما لیا ہے، ان کے گناہوں کو بخشنے کا وعدہ فرما لیا ہے۔ دہیا قلبی جب اتنا سنے تو رونے لگے، رو رو کر کے دعائی کرنے لگے، کفر آنکھوں سے پگھل پگھل کر کے نیچے ٹپک رہا تھا۔ تب دہیا قلبی نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو اپنے دونوں گناہوں کو بیان کر دو۔ میرے نبی فرماتے ہیں دہیا قلبی بیان کرو، اپنے جرم و خطا کو بیان کرو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور میرے سرداری میں 150 گھر آتا ہے، 150 گھر پر میں حکومت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ ہم نے ایک بل پاس کیا تھا، ایک قانون میں نے بنایا تھا اور وہ قانون یہ تھا کہ اگر عورت کے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہو تو اسے زندہ قبر میں دفن کر دیا جائے، اگر بیٹا پیدا ہو تو باپ کی امانت سمجھ کر کے اسے پال لیا جائے۔ یا رسول اللہ یہ قانون میں نے ہی بنایا ہے اور میں ہی اپنے قبیلے کا سردار ہوں، گاؤں کا میں چودھری ہوں قبیلے کا۔ یا رسول اللہ قانون میں نے بنایا ہے۔ یا اے میرے آقا
और इन्हीं हाथों से 70 बच्चियों को या रसूल अल्लाह हमने जिंदा कब्र में दफन करवाया है, 70 बच्चियों का कत्ल करवाया है, क्या मेरा गुनाह मुआफ होगा? हजरत जिब्रील उतर पड़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह खुदा आपको सलाम कहता है और तहे कल्बी को खुशखबरी सुना दीजिए कि अल्लाह ने इनके गुनाहों को मुआफ करने का वादा फरमा लिया। तहे कल्बी जब इतना सुनते हैं तो रोने लगे, तहे कल्बी फिर रोने लगे। मेरे आका ने फरमाया तहे कल्बी अब रोने की वजह क्या है? कहा या रसूल अल्लाह एक गुनाह मेरा और है, वो मेरा जाती गुनाह है, उसे सोचता हूं तो कलेजा मुंह को आता है, कलेजा फटने लगता है, मेरे दिमाग की नसें फटने लगती हैं। या रसूल अल्लाह अगर इजाजत हो तो दूसरा जुर्म भी बयान कर दो। मेरे नबी फरमाते हैं कहो। तहे कल्बी तुम्हारा दूसरा जुर्म क्या है वो भी बयान करो। कहते हैं या रसूल अल्लाह दूसरा जुर्म ये है मेरी बीवी हमल से थी, मेरी बीवी के पेट में एक बच्चा परवरिश पा रहा था, मैं अपने कबीले का सरदार भी हूँ और एक बहुत बड़ा मालदार ताजिर भी हूँ, मालदार व्यापारी भी हूँ। या रसूल अल्लाह मेरे घर माल इकट्ठा हो चुका था, सौदा कच्चा था, अगर फौरन मंडी में ना ले जाता तो बहुत भारी नुकसान हो जाता, मंडी मुल्क से बाहर थी। या रसूल अल्लाह मेरी बीवी हमल से थी, मेरी बीवी के पेट में बच्चा परवरिश पा रहा था, मगर यह खबर नहीं थी कि बेटा है या बेटी है, इसलिए मैंने जाने से पहले अपनी बीवी को ताकीद कर दिया था। मैं तो माले तिजारत लेकर के जा रहा हूं, अगर मेरे अदम मौजूदगी में कोई बच्चा पैदा हुआ, अगर लड़की पैदा होगी तो उसे जिंदा कब्र में दफन करवा देना या उसका गला दबोच करके उसे मार देना, अगर लड़का पैदा होगा तो हमारी अमानत समझ करके पाल लेना। कहते हैं अरब में जब औरतें बच्चा पैदा करने के लिए कमरों में बिठाई जाती थी तो कमरे में पहले ही कब्र का गड्ढा खोद दिया जाता था, अगर लड़की पैदा होती थी तो कब्र के गड्ढे में पाट दिया जाता था, लड़का पैदा होता था तो माँ के रेशमी आंचल में पाल लिया जाता था। दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह ये ताकीद करके मैं चला गया। तकरीबन 3.5 साल के बाद जब वापस पलट करके आया तो मेरे घर का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने दरवाजे की कुंडी पे दस्तक दिया तो अंदर से एक बच्ची की आवाज उभरती है, कौन है दरवाजे पर? या रसूल अल्लाह जब मैंने लड़की की आवाज अपने कानों से सुना तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। मैंने सोचा कहीं मेरे घर में लड़की तो नहीं पैदा हो गई है जिसको मेरी बीवी ने पाल लिया है। या रसूल अल्लाह इतना सुनते ही मैंने तड़प कर कहा दरवाजा खोल, मैं मालिके मकान दहिया कल्बी हूं। इतना कहना था या रसूल अल्लाह। जैसे ही दरवाजा खुला एक नन्ही सी बच्ची बाहर निकलती है जिसकी उम्र 3 साल से ज्यादा लग रही थी, बड़ी खूबसूरत बच्ची थी, ऐसा लगता था जैसे 14 के चांद का टुकड़ा जमीन पर आ चुका हो। या रसूल अल्लाह वो दरवाजा खोलते ही अपना सर मेरे दोनों टांगों के बीच में डाल देती है और अपने हाथों से मेरे पैरों को पकड़ लेती है और तड़प करके कहती है मेरे बाबा अभी तक आप कहां थे? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी, आपके चेहरे को देखने के लिए मैं तड़प रही थी। या रसूल अल्लाह जब इतना सुनता हो तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। मुझे यकीन हो गया कि मेरे घर में लड़की की पैदाइश हुई और मेरी बीवी ने बच्ची को पाल लिया। मैंने गुस्से के आलम में अपने बीवी को तलाशना शुरू कर दिया। या रसूल अल्लाह एक दीवार का सहारा लेकर के सहमी कांप रही थी। मैंने अपने बीवी से डपट कर कहा मैंने तुझसे कहा था अगर लड़की पैदा होगी तो उसे कत्ल कर देना, तूने लड़की को पाल लिया। तब अल्लाह तबारक व तआला ने दहिया कल्बी की बीवी को हौसला दिया था। दहिया कल्बी की बीवी ने कहा ऐ दहिया कल्बी सुनो, जिस तरह बेटे अल्लाह की नेमत हुआ करते हैं ऐसे बेटियां भी खुदा की रहमत हुआ करती हैं। हमने अल्लाह की रहमत समझकर इस बच्ची को पाल लिया। या रसूल अल्लाह उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा मगर मेरे सीने में इंतकाम की आग चल रही थी, शोले उभर रहे थे। मैंने 15 दिन तक कुछ नहीं बोला। 15 दिन गुजरने के बाद या रसूल अल्लाह एक दिन मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया और कहा एक काम कर मेरी बच्ची को गुस्ल करवा दे,
नहला दे, अच्छे कपड़े पहना दे, इसे मैं जरा बाजार लेकर के जाना चाहता हूँ। दहिया कल्बी की बीवी ने जब अपने शौहर से अपनी बेटी के बारे में सुना तो उनकी रूह झूम जाती है, जल्दी से उठती है और अपनी बच्ची को गुस्ल करवाती है, एक अच्छा सा कपड़ा पहनाती है, एक नन्हा सा दुपट्टा उसके गर्दन में डाल देती है। या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बच्ची को अपने गोद में ले लिया, एक साइड में मैंने बच्ची को लिया और कदम बढ़ाया तो उस कमरे की तरफ बढ़ाया जहां कब्र खोदने के लिए फावड़ा रखा हुआ था, कब्र खोदने के लिए कुदाल रखी हुई थी। या रसूल अल्लाह, मेरे कदम जैसे ही उस कमरे की तरफ बढ़े थे, मेरी बीवी ने हाथ जोड़ करके रहमो करम की भीख मांगा था, कहा था मेरे सरताज इस नन्ही सी जान पर रहम करो, इस पर जुल्म मत करो, इस बच्ची को कत्ल करके तुम्हें क्या मिलेगा। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं गुस्से से तमतमाया हुआ था, अपनी बीवी को धक्का दे दिया और आगे बढ़ा और कब्र खोदने वाला फावड़ा अपने कंधे पे उठा करके जंगल की तरफ चल पड़ा। या रसूल अल्लाह, एक साइड में मेरी बच्ची है, एक साइड में कब्र खोदने का आला लिए मैं जा रहा हूं, मेरी बच्ची को कुछ नहीं खबर है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी ने अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से मेरे बालों में कंघा किया था और मेरी बच्ची ने अपने गुलाब जैसे पंखड़ी वाले होठों से कभी मेरी पेशानी को चूमा था, कभी मेरे होठों को चूमा था, कभी मेरे आंखों को चूमा था और तूतली जबान में कहा था मेरे बाबा आप मुझे कहां लेकर के जा रहे हो, कितने अच्छे हो, आप मुझे बाजार लेकर के जाना चाह रहे हो। दहिया कल्बी रो रहे हैं और वाकया बयान कर रहे हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बच्ची को लेकर के गया, एक झाड़ी के नीचे बिठा दिया, साएदार पेड़ के नीचे बिठा दिया और उसी के सामने या रसूल अल्लाह मैंने फावड़ा लिया और उसका कब्र का गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। या रसूल अल्लाह, जब मैं गड्ढा खोद रहा था तो गर्दो गुबार उड़कर मेरे कमरे में पड़ रहे थे, मेरे कपड़े पे पड़ रहे थे। इतने में मेरी बच्ची अपने दुपट्टे को लेकर के दौड़ करके आती है या रसूल अल्लाह और मेरे कुर्ते से, मेरे कपड़े से गर्दो गुबार को साफ करती है, मिट्टी को साफ करती है और मेरी पेशानी पे टपकने वाले पसीने को अपने दुपट्टे से साफ करके पोंछ देती है और कहती है मेरे बाबा इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है, आओ जरा अपनी बेटी के साथ बैठ जाओ, अपनी बेटी के साथ थोड़ी देर मोहब्बत कर लो। या रसूल अल्लाह, फिर भी मुझे रहम न आया, शैतान मुझ पर मुसल्लत था, मैं कब्र का गड्ढा खोदता रहा, खोदता रहा। अचानक जब गड्ढा तैयार हो गया तब मैंने तड़प कर आगे बढ़ा और बच्ची को उठा करके पूरी ताकत से कब्र के गड्ढे में पटक दिया था। या रसूल अल्लाह, 3.5 साल की बच्ची थी, उसके हाथों पैरों में ताकत न थी, वो निकलना चाह रही थी, तब मैंने पैरों की ठोकर से मार कर कब्र में गिरा दिया था। तब मेरी बेटी रो करके कहा था मेरे बाबा मेरी जान मत लो, मुझे कत्ल मत करो, अगर मेरे चेहरे से नफरत है तो घर से बाहर निकाल दो, मैं पलट कर तुम्हारे दरवाजे पे कभी ना आऊंगी। मगर या रसूल अल्लाह, मुझे रहम न आया, मेरी बेटी कब्र से बाहर निकलना ही चाहती थी, मैंने पैर की ठोकर से मार कर कब्र के अंदर उसे गिरा दिया और कब्र का गड्ढा मैंने भरना शुरू कर दिया, मिट्टी पाटना शुरू कर दिया, मिट्टी बराबर करना शुरू कर दिया। या रसूल अल्लाह, जब मिट्टी में बराबर कर रहा था मेरी बच्ची फरियाद कर रही थी मगर मैं नहीं सुन रहा था, तब मेरी बेटी मरने से पहले जो आखिरी दुआ किया था, या रसूल अल्लाह, जब वो सोचता हूं तो कलेजा मुंह को आता है। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, दहिया कल्बी तेरी बेटी ने वो आखिरी दुआ क्या किया था, कहा था या रसूल अल्लाह, जब मेरी बेटी अपने गर्दन तक मिट्टी में पट जाती है तब उसने मेरी तरफ से उम्मीद को छोड़ा था और अपना सर आसमान की तरफ उठा करके कहा था या अल्लाह, वो तेरा नबी कब आएगा जो मरने वाली बेटियों को जिंदगी का मुद्दा सुनाएगा। या रसूल अल्लाह, यही कहते कहते मेरी बेटी हमेशा के लिए कब्र में दफन हो जाती है। मेरे नबी इतना रोए, मेरे नबी इतना रोए, इतना रोए कि नबी की दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती है। नबी रोने लगे और तड़प करके एक तारीखी जुमला मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे जानिसार सहाबा सुनो, जिसको खुदा ने 2 बेटियां दी हो
हो और दोनों को इस्लाम की तालीम दे दे, दोनों को अदब सिखा दे। नबी फरमाते हैं वो कल क़यामत के दिन जन्नत में मेरे बगल में ऐसे होगा जैसे शहादत की उंगली के बगल में बीच की उंगली हुआ करती है। मेरे नबी फरमाते हैं अपनी बेटी को अदब देकर उसकी शादी कर दे, नबी फरमाते हैं वो जन्नत में मेरे बगल में होगा। ऐ सुन्नी मुसलमानों गौर करो, जब दो बेटियों वालों के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी है तो तीन वालों का मकाम क्या होगा, चार वालों का मकाम क्या होगा, पांच वालों का मकाम क्या होगा। कहां मर गए वो लोग जो हम दो हमारे दो का नारा लगाने की बातें करते हैं। ऐ फैमिली प्लानिंग के दिल दादा बनने वाले जाहिलो, मेरे नबी फरमाते हैं उस औरत से निकाह करो जिसके यहाँ बच्चों की तादाद ज्यादा हो, ताकि कयामत में मैं अपनी उम्मत पे फख्र करता। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नबी रहमत से सच्ची मोहब्बत करने वालों, नबी से प्यार करने वालों, नबी से इश्क करने वालों, ये तो वो खुशनसीब लोग हैं जिनके घरों में बच्चों ने जन्म लिया हो, बच्चियों ने जन्म लिया हो, मगर हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी की खिदमत में हाजिर होकर के अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह, ये तो वो खुशनसीब लोग हैं जिनके घरों में बच्चों ने जन्म लिया हो, मगर आपकी उम्मत में कुछ ऐसे लोग होंगे जो लावलद होंगे, न कोई बेटा होगा, न कोई बेटी होगी, न कोई यार होगा, न कोई मददगार होगा। जरा उनके बारे में नबी फरमा दीजिए। तब मेरे नबी ने फरमाया था ऐ आयशा, जिसका दुनिया में कोई सहारा ना होगा, कयामत के दिन उसका सहारा मैं बनूंगा। नूह को भी मौजे तूफा से किनारा मिल गया, हजरत मूसा को भी लुत्फे नजारा मिल गया, अलगरल हर एक बेचारे को चारा मिल गया, हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया। सच्ची मोहब्बत करने वालों, नबी से प्यार करने वालों, नबी से इश्क करने वालों, नबी से मोहब्बत का दावा करने वालों, वो अरब के जाहिल थे जो लड़कियों को पैदा होने के बाद कत्ल करते थे। ये हिंदुस्तान के जाहिल हैं जो लड़कियों को पैदा होने से पहले माँ को सोनोग्राफी के जरिए पता लगाते हैं, डीएनए टेस्ट के जरिए पता लगाते हैं, एक्सरे के जरिए पता लगाते हैं मेल है कि फीमेल है। अगर लड़की होती है तो बाप जालिम जहर का इंजेक्शन देकर के लड़की का खात्मा कर देता है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं 4 महीने के बाद बच्चे के जिस्म में रूह डाल दी जाती है। रूह डालने के बाद अगर किसी बाप ने यह ज्यादती की तो समझ लो एक मोमिन कातिल है और मोमिन का कातिल जहन्नम का कुंदा बना दिया जाएगा। ऐ मुसलमानों, अरब के जाहिल लड़कियों को कत्ल क्यों करते थे? ताकि मुझे किसी को अपना दामाद ना बनाना पड़े, किसी के सामने सर ना झुकाना पड़े। अरे जाहिल, जिस खुदा ने तेरे घर में बेटी को पैदा किया है उस बेटी का जोड़ा भी अल्लाह ने पैदा कर दिया है। जिस खुदा ने तेरे यहाँ औलाद की कसरत दी है उस खुदा ने तेरे लिए रोजी रोटी का इंतजाम भी कर दिया है। इस्लाम के मानने वालों, इस्लाम से मोहब्बत करने वालों, इस्लाम के बताए हुए उसूलों पे अमल करो, इस्लाम के लाए हुए कानूनों पे अमल करो, अपने आप पर फैसला मत किया करो। आज दौर मॉडर्न आया है, आज हमारा नौजवान जानता ही नहीं है शरीयत किसको कहते हैं, माँ बाप के हुकूक किसको कहते हैं, भाई बिरादरी का हक क्या है, पड़ोसियों के हुकूक क्या है। आज खाना जंगी का ये आलम है। एक मुल्क में नहीं, एक गांव में कई कबीले बनकर के लोग जिंदगी गुजारा करते हैं। ऐ मुसलमानों, इख्तिलाफ मौत है, इत्तेहाद जिंदगी का नाम है। इख्तिलाफ पे जियोगे तो तबाह कर दिए जाओगे, मुत्तहिद हो जाओगे तो रसूलुल्लाह के सच्चे गुलाम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हक है हक है।